बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की, जो 151 से लेकर 200 के बीच में होंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं क्या है। अ टीचर शुड बी प्राउड ऑफ हिज स्टूडेंट हुज या हु, ऑप्शन ए, इज स्टीड फास्ट टू हिज आइडियल्स ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी इज इफ अपॉइंटेड अ टीचर makes effort with devotion for the betterment of his students always, option C shows peaceful resistance to immorality, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है अ टीचर शुड बी प्राउड ऑफ हिज स्टूडेंट, टीचर को अपने स्टूडेंट पे प्राउड करना चाहिए उस पर। यहाँ चार ऑप्शन है, चार में से बताइए कौन सा किस पर। तो चारों ही सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। इज स्टीड फास्ट टू हिज आइडियल्स ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी है इज इफ अपॉइंटेड अ टीचर मैक्स एफर्ट विद डिवोशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स ऑलवेज, एंड ऑप्शन सी shows peaceful resistance to immorality. Next question number 152. If you are included in a jury of debate competition, option A, you will feel proud, option B, you will give decision according to the performance of the participant, option C, you will give decision on the basis of decision given by others, option D, you will not give any weightage to the content, you will consider only the expression. तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, यू विल गिव डिसीजन अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट। आंसर है इफ़ यू आर इंक्लूडेड इन अ ज्यूरी ऑफ डिबेट कॉम्पिटिशन यू विल गिव डिसीजन अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, knowing the religion and caste of a child in the class is, option A, is very essential because its report is sent to the education department, option B is not necessary at all, option C is essential because it tells us the family background of the students, option D is necessary so that education can be given to pupils according to their respective abilities. Option B is a correct answer, is not necessary at all. Knowing the religion and caste of a child is not necessary at all. Next question, what is your viewpoint regarding open schooling system? Option A, it is a good source of education extension. Option B, this gives chance of education to those students also who happen to leave schooling in the middle due to any reason. Option C, learning material is obtained here at home, and option D is A and B both. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए और बी बोथ। तो ए बी क्या है भाई, ए बी है इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एजुकेशन एक्सटेंशन, दिस गिव्स चांस ऑफ एजुकेशन टू दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो who happen to leave schooling in the middle due to any reason. Both are the correct answer, A and B both are correct, therefore option D is the correct answer. क्वेश्चन था व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट रिगार्डिंग द ओपन स्कूलिंग सिस्टम, ओपन स्कूलिंग सिस्टम के रिगार्डिंग आपका क्या व्यू पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, द एडवांटेज ऑफ इंक्लूडिंग पॉपुलेशन एजुकेशन इन द स्कूल करिकुलम इज दैट, ऑप्शन ए, students can be informed about the problems arising out of the population explosion, option B, students will be able to make their families happy due to this education, option C, students will be able to know the methods of birth control and limit their families in future, option D, all of the above. तो यहाँ पर क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ इंक्लूडिंग पॉपुलेशन एजुकेशन इन द स्कूल करिकुलम इज दैट, स्कूल करिकुलम के अंदर पॉपुलेशन एजुकेशन को इंक्लूड करने का क्या एडवांटेज है। आपके पास चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताइए। Option A is a correct answer. Students can be informed about the problems arising out of the population explosion. क्या है भाई, स्टूडेंट्स कैन बी इन्फॉर्म्ड, स्टूडेंट इन्फॉर्म हो पाएंगे कि प्रॉब्लम पॉपुलेशन से रिलेटेड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं उनके बारे में जान पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे। तो ये एडवांटेज है जब हम इसे पॉपुलेशन एजुकेशन को अपने स्कूल करिकुलम में ऐड करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमिलरिटी बिटवीन ए टीचर एंड ए डॉक्टर इज दैट, ऑप्शन ए, बोथ ऑफ देम आर social workers, option B, both of them take remedial measures after proper diagnosis, option C, both of them come from the same educational background at least at school level, option D, both of them are professionals. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बोथ ऑफ देम टेक रेमेडियल मेजर्स आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस, पूरी डायग्नोसिस होने के बाद रेमेडियल मेजर्स लेते हैं। ये दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं डॉक्टर और टीचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If a principal wants that his school should produce good results, then what he should do? Option A, he should advise his students to go for tuitions. Option B, he should admit only talented students in his school. Option C, he should try in the best possible manner to raise the standard of education of his school. Option is none of these. तो ये तो होगा ही नहीं, नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं कि आप कुछ मत करो फिर भी स्कूल का जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी एजुकेशन है, गुड रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा. कुछ मत करो तो कुछ मत करने से कुछ होता ही नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचो. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ही शुड ट्राई इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज स्कूल. ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप ट्यूशन के लिए एडवाइस नहीं करेंगे. अगर ट्यूशन ही बच्चों को लेना होगा तो वो स्कूल में क्यों आएगा. ठीक है, सिर्फ रिजल्ट थोड़ी ना चाहिए. ऑप्शन बी, ही शुड एडमिट ओनली टैलेंटेड स्टूडेंट्स. तो जो टैलेंटेड नहीं है उनको कौन पढ़ाएंगे जब सभी स्कूल यही सोचना शुरू कर देंगे. तो इसलिए सही एक अच्छा रास्ता ये होगा कि उन्हें सोचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कितनी बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसे बढ़ाया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए टीचर विच टाइप ऑफ स्टूडेंट वुड यू लाइक मोस्ट? ऑप्शन है he who is obedient. Option B, he who is active and hardworking. Option C, he who is peace loving. Option D, he who comes to school by completing his homework daily. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ही हु इज़ एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग. जो एक्टिव हो, हार्ड वर्किंग हो, एज ए टीचर मैं उस तरीके के स्टूडेंट को लाइक करूँगा और यही करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ही हु इज़ एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आर ए लेडी टीचर एंड एनी ऑफ योर कलीग्स क्रिटिसाइजेज you, then you, option A, will accept the criticism with pleasure. Option B, will complain to the principal regarding the matter. Option C, will take revenge with much more force. Option D, will not lose your patience after hearing your criticism. तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. क्या आंसर है भाई? जब आप एक लेडी टीचर हैं, आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, आपके खिलाफ कोई बोलता है, तो आप बड़े ही पेशेंस के साथ अपने जो पेशेंस है उसको नहीं खोएंगे जब आप क्रिटिसिज्म सुनेंगे अपने बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम पीपल डू नॉट बिहेव नाइसली इन द सोशल सेटअप बिकॉज. ऑप्शन ए, दे आर ऑफ बैड कंडक्ट बाय बर्थ. ऑप्शन बी, दे हैव नॉट लर्नड गुड हैबिट्स एंड गुड कंडक्ट. ऑप्शन सी, दे डू नॉट थिंक इट नेसेसरी. ऑप्शन डी, दे फील प्लेजर बाय डिफाइंग लॉज. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दे हैव नॉट लर्नड गुड हैबिट्स एंड गुड कंडक्ट. क्वेश्चन था, सम पीपल डू नॉट बिहेव नाइसली इन द सोशल सेटअप बिकॉज दे हैव नॉट लर्नड गुड हैबिट्स एंड गुड कंडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द टीचर्स इन योर स्कूल बिहेव्स वेरी लीनियंटली इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इन द एग्जामिनेशन. What will be your reaction at this? Option A, you will maintain your impartiality anyhow without caring others. Option B, you will complain to the principal regarding the matter. Option C, you will start a campaign against these dishonest teachers. And the option D is all of these. तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, यू विल मेंटेन योर इम्पार्शलिटी एनी हाउ विदाउट केयरिंग अदर्स. क्वेश्चन था, सम ऑफ द टीचर्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर कुछ टीचर्स जो हैं कुछ लीनियंटली बिहेव कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के फेवर में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर एग्जामिनेशन के टाइम पर. तो आप क्या करेंगे? आप वैसा नहीं करेंगे, आप वैसे ही इम्पार्शलिटी करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे किसी भी स्टूडेंट के बीच में, आप वैसे ही रहेंगे जैसे कि आइडियल टीचर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएट्स द एबिलिटी एंड कंडक्ट ऑफ ए टीचर बेस्ट. Who of the following evaluates the ability and conduct of a teacher best? Option A, principal of the school. Option B, expert and inspectors. Option C, pupils of the teacher himself. Option D, well-known people of the society. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, pupils of the teacher himself. अपने आप, खुद अपने आप को evaluate करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, affectionate and creative in the classroom is the biggest social service. With this statement, you. Option A, do not agree at all. Option B, agree only partially. Option C, are hateful to this statement. Option D, absolutely agree. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, absolutely agree. क्वेश्चन क्या है? affectionate and creative in the classroom is biggest social service. With this statement, you absolutely agree. Next question है, if a student of any other subject teacher meets you in the interval to ask you something,
You option, you will suggest the boy to ask only from his own teachers. Option B, you will ask him to come later on. Option C, you will solve his problem at once. Option D, you will advise him to study the lesson from the book himself. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विल सॉल्व हिज प्रॉब्लम एट वंस। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इफ़ ए स्टूडेंट ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट टीचर मीट्स यू इन द इंटरवल टू आस्क यू समथिंग, यू विल सॉल्व हिज प्रॉब्लम एट वंस। सिर्फ एक ही बार आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर दोबारा अगर फिर बच्चा फिर प्रॉब्लम लेके आता है तो आप बोलेंगे अपनी क्लास टीचर, अपने सब्जेक्ट टीचर के पास जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज़ कॉन्टीन्यूसली टेरिफाइड इन द क्लास, व्हाट इज़ योर सजेशन फॉर दैट स्टूडेंट? ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए है यू विल टेक हिम टू द प्रिंसिपल। ऑप्शन बी है यू विल आस्क हिम severely the reason why it is so. Option C, you will inform to his guardians. Option D, you will affectionately encourage him. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यू विल affectionately encourage him. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, द मेन रीज़न टू यूज़ अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन इज। ऑप्शन ए है यहाँ पर डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम। ऑप्शन बी, डिग्रेडेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज़। ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो सोचिए क्या आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम इज ऑल्सो एंड डिग्रेडेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज़। द मेन रीज़न, क्वेश्चन क्या है देखो, द मेन रीज़न टू यूज़ अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन के दौरान अनफेयर मीन्स हो रही है, उसका मेन रीज़न हो सकता है कि वो एग्जामिनेशन सिस्टम डिफेक्टिव हो, डिग्रेडेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज़ स्पिरिचुअल इन सभी का डिग्रेडेशन हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इज मोस्ट रिक्वायर्ड बाय लेडी टीचर? ऑप्शन A, sweet tongue. Option B, beautiful personality. Option C, ability to adjust anywhere in no time. Option D, B and C both. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी बोथ। बी क्या है? ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, और सी क्या है? एबिलिटी टू एडजस्ट एनीवेयर इन नो टाइम। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट रिक्वायर्ड बाय लेडी टीचर इज ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, एबिलिटी टू एडजस्ट एनीवेयर इन नो टाइम। Next question 168, the image and dignity of female and male both types of teachers have gone down today. The main reason behind it is, option A है their greedy tendency towards tuition. Option B, their carelessness of teaching. Option C, degradation in their character. Option D, all of the above. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो इमेज है, डिग्निटी है, भले वो मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो, वो डिग्निटी डाउन होते चले जा रही है। इसका रीज़न इन तीनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है, वो तीनों रीज़न भी हो सकते हैं। उनका लालच अपने ट्यूशन के प्रति, उनकी लापरवाही टीचिंग के प्रति, और उनका कैरेक्टर एक तरीके से ख़राब होना, डिग्रेड होना, ये भी एक कारण है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट इन टुडेज कंटेक्स्ट? तो टुडेज, आज के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है, पहला स्टेटमेंट है स्कूल इज बीइंग पॉल्यूटेड वेरी फास्ट बाय द एविल्स ऑफ द सोसाइटी। ऑप्शन बी है सोसाइटी इज नॉट गेटिंग एबल स्टूडेंट्स ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ टीचर्स। ऑप्शन सी, इट इज़ अ टीचर who makes the student future citizens. These citizens become corrupt after their education is over. It otherwise means that teacher is producing corrupt citizens. Option D, all of the above. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्कूल इज बीइंग पॉल्यूटेड वेरी फास्ट बाय द एविल्स ऑफ द सोसाइटी। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोर करेक्ट इन टुडेज कंटेक्स्ट? स्कूल इज बीइंग polluted very fast by evils of the society. Number 170, sufficient equipments are not available in your science laboratory. In such a situation, option A, you will suggest the pupils not to study science. Option B, you will request to the principal to arrange all the required equipments. Option C,
you will get on what is available there. ऑप्शन डी, none of the above. तो कहा गया है कि अगर आपकी साइंस लेबोरेटरी में इक्विपमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे? सोचिए, इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 170 का ऑप्शन बी इज़ ए करेक्ट आंसर। यू विल रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल टू अरेंज ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द cause of lack of good relationship between students and teacher today is option A, the indifferent nature of professionalism of the teacher. Option B, lack of devotion and dedication of teachers. Option C, heavy load of curriculum on pupils. Option D, A and B both. तो क्वेश्चन है द कोज ऑफ लैक ऑफ गुड रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर। स्टूडेंट और टीचर के बीच में अच्छी रिलेशनशिप की कमी क्या वजह हो सकती है? तो चार में से कोई एक सफिशिएंट वजह हो सकती है भाई, तो बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी बोथ। कि जो इनडिफरेंट नेचर होगा प्रोफेशनलिज्म का टीचर का, तो जिससे लैक ऑफ गुड रिलेशनशिप होगी। लैक ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन ऑफ द टीचर्स, यानी कि टीचर डेडिकेट नहीं है अपने काम के प्रति, तब भी लैक ऑफ गुड रिलेशनशिप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज एंड फिजिकल इक्विपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? तो पूछा गया है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? फिजिकल इक्विपमेंट्स वो डेवलप्ड हों, इस चीज़ के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं एजुकेशन की फील्ड में? तो ऑप्शन ए है, इट हैज़ हेल्प्ड a lot of for the extension of education. Option B, neat and beautiful printing of textbooks has influenced small children very positively. Option C, every field of education has gained speed and accuracy. Option D है all of the above. करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? all of the above, कि सभी कुछ होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी जैसे इसमें लिखा है कि एजुकेशन की हर एक फील्ड में स्पीड यानी कि तेज़ी आएगी, ये सही है। अगर डेवलप्ड रिसोर्सेज हों, डेवलप फिज़िकल इक्विपमेंट हों तो ऐसा होगा। दूसरी बात, नीट एंड ब्यूटीफुल प्रिंटिंग टेक्स्ट बुक्स जब आएंगी तब स्मॉल चिल्ड्रंस उससे अट्रैक्ट होंगे किताबों के प्रति और पढ़ेंगे। ऑप्शन ए भी सही है, इससे एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 173, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट सेल्फ सेंटर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम? ऑप्शन ए, students do not have to face the problem of adjustment in new places in this system. Option B, students get the facility of cheating in this system. Option C, students can become more disciplined in this system. Option D है, students often do not perform well on other examination centers due to frustration. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स अक्सर सही परफॉर्म नहीं कर पाते अदर एग्जामिनेशन सेंटर्स पर फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो ये एक ओपिनियन बनता है सेल्फ सेंटर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सक्सेसफुल टीचर? इनमें से कौन सक्सेसफुल टीचर है आपके नज़रिए से? ऑप्शन ए, ही हु इज़ सक्सेसफुल इनफ टू मोटिवेट हिज स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग. ऑप्शन बी, he who is always worried about the betterment of his students. Option C, he who is a lifelong student. तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. तो भाई बेस्ट टीचर, सक्सेसफुल टीचर वो है जो ऑप्शन ए भी हो, बी भी हो और सी भी, तीनों चीज़ें फॉलो करें. तो सी में बोला है कि लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हो, सीखने के प्रति तत्पर हो. ऑप्शन बी है ही हु इज़ ऑलवेज वरीड अबाउट द बेटरमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के बारे में हमेशा उनकी अच्छाई चाहे. और ऑप्शन ए कि वो मोटिवेट करे स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए. तो उस चीज़ में अगर वो सक्सेसफुल है तो बेस्ट टीचर है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग जॉब इज़ ए चैलेंज वन बिकॉज इट रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग स्टडी. ऑप्शन बी, इट रिक्वायर्स चेंज ऑफ वंस बिहेवियर एवरी टाइम अकॉर्डिंग टू इन्यूमरेबल psychological demands of pupils. Option C है, in this profession a person can be sometimes shocked. Option D, in this profession every teacher has to give good examination result of his class. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी
कि भाई एक टीचिंग जॉब एक चैलेंज है कि नहीं उन कुछ लोगों के लिए। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जो हर एक पीपल है उसकी डिमांड अलग है, साइकोलॉजिकल डिमांड अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, उसके साथ उसे हैंडल करना उसमें अलग एटीट्यूड की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए टीचिंग प्रोफेशन एक तरीके से चैलेंज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ स्कूल्स जस्टिफाइज द स्टेटमेंट दैट ए स्कूल शुड बी pioneer of the social upliftment। ऑप्शन ए है नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्कूल, ऑप्शन बी है प्रोग्रेसिव फंक्शन ऑफ स्कूल, ऑप्शन सी है कंजर्वेटिव फंक्शन ऑफ स्कूल, ऑप्शन डी है रिएक्शनरी फंक्शन ऑफ स्कूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोग्रेसिव फंक्शन ऑफ स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कांट बी एक्सेप्टेड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए स्कूल्स आर नेसेसरली अफेक्टेड बाय चेंजेस इन सोसाइटी, ऑप्शन बी स्कूल कैन बी पावरफुल एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, ऑप्शन सी स्कूल्स आर पोटेंशियल एजेंट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ऑप्शन डी स्कूल्स आर सोशल एजेंसीज ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते? तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में से एक सही है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्कूल्स जो हैं वो पोटेंशियल एजेंट्स हैं जो डिसइंटीग्रेशन के लिए। तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि स्कूल कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं करते, इंटीग्रेट करने का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इनमें से कौन सा जो स्पिरिट है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की, इक्वलिटी की स्पिरिट के अगेंस्ट है? तो ऑप्शन है पब्लिक स्कूल्स, ऑप्शन बी गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ऑप्शन सी आश्रम स्कूल्स, ऑप्शन डी नवोदय विद्यालय। तो इनमें से कौन सी बात आपको पता चलती है जिससे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जो इक्वलिटी की स्पिरिट है वो उसके अगेंस्ट है? तो आपको कौन सा स्कूल लगता है जो इसके अगेंस्ट है? सोचिए। तो इसका आंसर है पब्लिक स्कूल्स। तो पब्लिक स्कूल्स जो है वो अगेंस्ट है स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर है आपके अनुसार, बताइए कौन सा। जैसे एल का मतलब लिसनिंग, आर का मतलब रीडिंग, एस का मतलब स्पीकिंग, डब्ल्यू का मतलब राइटिंग। तो बताइए कौन सा सबसे बेस्ट वे है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। भाई कैसे? सबसे पहले इंसान LSRW लिखा हुआ है, तो एल का मतलब लिसनिंग, एस का मतलब स्पीकिंग, आर का मतलब रीडिंग, डब्ल्यू का मतलब राइटिंग। तो इसी के अनुसार कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है, क्योंकि सबसे पहले आप सुनेंगे, फिर उसके बाद आप बोलने की कोशिश करेंगे, जो आपने सुना वही बोलने की कोशिश करेंगे। आर से आ जाता है रीडिंग, आप उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तभी पूरी तरीके से लैंग्वेज सीखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल थ्रू इट्स प्रोग्राम्स हेल्प्स स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए एसिमिलेट कल्चर, ऑप्शन बी इग्नोर अदर कल्चर्स, ऑप्शन सी प्रोटेस्ट कल्चर्स, ऑप्शन डी मेक देम कल्चर्ड। तो ये जो स्कूल है, ये स्कूल से इस प्रोग्राम में मदद मिल सकती है स्टूडेंट्स को। तो बताइए कौन से प्रोग्राम में मदद मिल सकती है स्टूडेंट को। तो इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज डी, मेक देम कल्चर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग शुड बी। ऑप्शन ए टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग लर्नर्स, ऑप्शन बी टू ट्रेन लर्नर्स फॉर सम वोकेशन, ऑप्शन सी टू प्रिपेयर देम फॉर हायर क्लासेस, ऑप्शन डी टू फैसिलिटेट लर्निंग। तो मेन एम क्या है क्लासरूम टीचिंग का, वो आपको बताना है। क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या होगा? तो क्लासरूम टीचिंग का मेन एम होगा ऑप्शन ए, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग लर्नर्स। लर्नर्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, ये मेन एम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ बैंड ऑप्शन ए corporal punishment, option B mental harassment, option C both corporal punishment and mental harassment, option D extra classes। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है, इनने किस पर बैन लगा दिया? तो ऑप्शन है सी, दोनों पर, कॉर्पोरल पनिशमेंट पर भी
कि कभी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, और दूसरा मेंटल हरासमेंट, दोनों पर पनिशमेंट लगा, वो बैन लगा दिया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टीचिंग एनवायरनमेंट इन द स्कूल कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड इफ ऑप्शन ए corporal punishment is always given, option B learner is motivated to write for wall magazines, option C teacher is given freedom to use innovative methods, option D there are frequent PTA meeting, पेरेंट टीचर मीटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो किसी भी स्कूल में एडवर्सली अफेक्टेड टीचिंग इन्वायरमेंट पे पड़ेगा जब कॉर्पोरल पनिशमेंट हमेशा दी जाएगी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर व्यू प्ले एक्टिविटीज़ इन स्कूल इज़ ऑप्शन ए नेसेसरी फॉर साइकोमोटर डेवलपमेंट, ऑप्शन बी अ सिंपल वेस्ट ऑफ टाइम, ये तो होगा ही नहीं भाई, प्ले और एक्टिविटी जो है सिंपल वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ऑप्शन सी नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ हैवी एकेडमिक शेड्यूल, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नेसेसरी फॉर साइकोमोटर डेवलपमेंट। इसके लिए प्ले और एक्टिविटी स्कूल्स में ज़रूरी है साइकोमोटर डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड क्लासरूम डिसिप्लिन इम्प्लाइज, ऑप्शन ए टोटल साइलेंस विद अटेंशन टू टीचर, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स टू रिमेन एक्टिव इन लर्निंग एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी स्टूडेंट डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, ऑप्शन डी स्टूडेंट टू बी बिजी इन सेल्फ स्टडी। तो गुड क्लासरूम डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टूडेंट्स टू रिमेन एक्टिव इन लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी कि स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सब लर्निंग एक्टिविटीज़ में बिजी हों, ठीक है, रिमेन रहें और सीखें उस चीज़ से। तो ये क्लासरूम डिसिप्लिन सबसे अच्छा क्लासरूम डिसिप्लिन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, effective learning depends on interest of the child, option B difficulty level of the learning, option C either A और B, option D both A and B। तो effective learning जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर, सोचिए। चार ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ऑप्शन बी डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द लर्निंग, ऑप्शन सी भाई इन दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन डी है दोनों ही। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर वुड बिकम मोर इफेक्टिव इफ, ऑप्शन ए स्टूडेंट स्कोर हाई मार्क्स, ऑप्शन बी टीचर यूजेस गुड इंस्ट्रक्शनल एड, ऑप्शन सी है शी और ही हेल्प्स लर्नर टू अचीव मास्टरी इन लर्निंग, ऑप्शन डी है शी और ही हेल्प्स स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टीचर यूजेस गुड इंस्ट्रक्शनल एड्स। टीचर्स जब गुड इंस्ट्रक्शनल एड्स यूज़ करेंगे तो टीचर एक मोर इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 188, इन ऑर्डर टू elicit the response year 269 BC while concluding a lesson on Ashoka, which of the following questions would be the best? Option A, when did Ashoka succeed the throne, option B, after whom did Ashoka succeed the throne, option C, in which year did Ashoka coronation take place, option D, any of the above questions। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, in which year did Ashoka's coronation take place। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, द बेस्ट वे टू हैंडल अ रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑफ अ स्टूडेंट वुड बी, ऑप्शन ए है टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर इन डिटेल अगेन, ऑप्शन बी है टू टेल द स्टूडेंट दैट योर आंसर इज रॉन्ग, ऑप्शन सी टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी टू एक्सप्लेन एंड गिव अनदर चांस टू गिव आंसर। तो यहाँ पर बताना है हमें कि जब आपने कोई क्वेश्चन पूछा उसका रॉन्ग रिस्पॉन्स आता है स्टूडेंट की तरफ से, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने का बेस्ट तरीका क्या होगा। चार ऑप्शंस हैं अपने पास, चार ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना है कि कौन सा बेस्ट वे है जिसके थ्रू ये चीज़ हैंडल की जाए। तो ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट आंसर। कैसे भाई? टू एक्सप्लेन एंड गिव अनदर चांस टू गिव आंसर। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसे एक्सप्लेन करेंगे दोबारा और फिर दोबारा चांस देंगे उनको, बच्चों को, कि अब बताओ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब बताओ आप क्या समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डेवलपिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासरूम टेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स वुड बी मोस्ट सूटेड। अब भाई आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासरूम टेस्ट डेवलप करने जा रहे हैं, कौन सा टाइप जो है सबसे ज़्यादा सूटेड रहेगा? ऑप्शन ए मल्टीपल चॉइस टाइप, ऑप्शन बी ट्रू फॉल्स टाइप, ऑप्शन सी सेलेक्ट द करेक्ट रीज़न, या ऑप्शन डी फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपके पास ये
4 तरीके के टाइप दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्लासरूम टेस्ट के अंदर, कौन सा बेस्ट होगा आपको बताना है। तो इसमें बेस्ट होगा सेलेक्ट द करेक्ट रीज़न। इससे बच्चा जो है सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं टिक कर रहा, वो रीज़न को समझेगा, जो उसके पीछे क्यों है उसका जवाब देखेगा और फिर उसके बाद उस रीज़न पे सिलेक्ट करेगा, तो इससे ज़्यादा सीख पाएगा वो। तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासरूम टेस्ट को बनाने के लिए। इससे मोर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर इन द क्लास शुड कीप हिज हर स्पीच। तो कोई एक टीचर है क्लास में और वो अपनी स्पीच दे रहा है, तो भाई ऑप्शन ए है इंटोनेटेड, ऑप्शन बी लो वॉल्यूम, ऑप्शन सी हाई वॉल्यूम, ऑप्शन डी मॉडरेट वॉल्यूम। तो उसे कैसी अपनी स्पीच रखनी चाहिए, कैसी अपनी स्पीच उसे रखनी चाहिए जब कोई टीचर क्लास में स्पीच दे रहा है। तो आपके हिसाब से बताओ कौन क्या कैसी रखनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटोनेटेड, यानी कि टून बनाकर रखनी चाहिए। जिस माहौल में आप दे रहे हैं वो माहौल मेंटेन रहे, एक टून में आपको वो स्पीच देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग लर्नर्स कैन बी बेस्ट एकम्प्लिश्ड थ्रू। तो आपको इस सवाल का मतलब समझना है क्या है। सवाल का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि आप साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों के बीच में डेवलप करना चाहते हैं और उसको किस तरीके से डेवलप करेंगे। ऑप्शन ए है टीचिंग ऑफ साइंसेस, ऑप्शन बी है टेलिंग देम टू एक्सेप्ट, ऑप्शन सी एक्सेप्टिंग व्हाट एल्डर्स स्पीक, ऑप्शन डी एक्सेप्टिंग फैक्ट्स ओनली आफ्टर एग्जामिनिंग एंड वेरीफाइंग। तो भाई साइंटिस्ट के तौर पे साइंटिफिक आप एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेनी है। सबसे पहले उसके पीछे फैक्ट क्या है, आप खुद एग्ज़ामिन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर जाके एक्सेप्ट करेंगे। यही साइंटिफिक एक एटीट्यूड होता है। इस चीज़ को आप स्टूडेंट्स के बीच में लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस टू द प्रोसेस ऑफ द क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग के दौरान कौन से सीक्वेंस, इनमें से कौन सी सीक्वेंस फॉलो की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी का मतलब है डिलीवरी, ई का मतलब है इवेल्यूशन, एफ का मतलब है फीडबैक, के का मतलब है नोइंग द टारगेट लर्नर, पी का मतलब है प्लानिंग। तो बताओ इनमें से कौन सा है सही। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पी के डी ई एफ। तो यहाँ पर पी के डी ई एफ कैसे भाई, सबसे पहले आप पी प्लानिंग करेंगे कि आपको क्या पढ़ाना है। ए का मतलब है दूसरे नंबर पे के है नोइंग द टारगेट लर्नर, कि आपको किसको पढ़ाना है। ऑप्शन फिर उसके बाद है डी, डी का मतलब है डिलीवरी। तो आप जब ये जान लेंगे कैसे पढ़ाना है, प्लानिंग करेंगे आप, फिर उसके बाद जानेंगे किसको पढ़ाना है, फिर उसके बाद देखेंगे कि आपको डिलीवरी देनी है, तो सीधा आप डिलीवरी देंगे, यानी कि जो भी प्लान आपने किया है, लेसन प्लान किया, उसको डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट है फिर भी ई, तो ई का मतलब है फिर बच्चों का इवेल्युएशन करेंगे, फिर उसके बाद बच्चों से फीडबैक लेंगे। तो फाइनल पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू अवॉइड अननेसेसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम वी शुड यूज़। ऑप्शन ए पीरियोडिकल टेस्ट ओनली, ऑप्शन बी पीरियोडिकल टेस्ट विद करेक्टिव मेजर्स, ऑप्शन सी टेस्ट बाय टीचर्स ऑफ अदर स्कूल्स, ऑप्शन डी नो टेस्टिंग एट ऑल। तो भाई नो टेस्टिंग एट ऑल तो नहीं करेंगे भाई। आप अननेसेसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो अराइज हो रही हैं एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम में, उससे ख़त्म करना चाहते हैं, उसे पूरी तरीके से बंद करना चाहते हैं। तो इसमें क्या सही रहेगा, ठीक है बताओ, सोचो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कि आप पीरियोडिकल टेस्ट लेंगे और कुछ करेक्टिव मेजर्स के साथ, तो ये चीज़ सही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील प्रोग्राम इन गवर्नमेंट स्कूल्स मीट्स विच नीड ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड की कौन सी नीड को फुलफ़िल करता है मिड डे मील प्रोग्राम इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ऑप्शन ए है सेफ्टी, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल, ऑप्शन डी लव एंड बिलोंगिंगनेस, ऑप्शन डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सोचिए कौन सी नीड को मिड डे मील प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कूल्स में पूरी करता है, हमें यही सोचना है, बताइए। तो सबसे पहली बात सेफ्टी, ऑप्शन ए इज़ ए करेक्ट आंसर, सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, while asking a probing questions in a class, which of the following can affect the response adversely? Option A clear intent, option B having no previous material to refer to, option C use of double negatives, option D questions with one correct answer। तो कौन सा होगा सही,
तो इसका करेक्ट आंसर है क्लियर इंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेंटली चैलेंज चाइल्ड। तो एक मेंटली चैलेंज चाइल्ड है आपके सामने। ऑप्शन ए कांट अटेन मास्टरी इन टास्क एट ऑल। ऑप्शन बी कैन अटेन मास्टरी विद अल्टरनेटिव सुटेबल एनवायरनमेंट एंड मेथड। ऑप्शन सी कैन अटेन बट वुड नीड मोर टाइम। ऑप्शन डी कैन अटेन मास्टरी लाइक एनी अदर चाइल्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचो। एक तरीके से ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपके सामने मेंटली चैलेंज चाइल्ड, बस एक शब्द ही रखा है। अब आपके दिमाग में क्या आता है, फिर उसके बाद ऑप्शंस दिए जाएंगे, फिर ऑप्शन के जरिए आप मेंटली चैलेंज चाइल्ड के बारे में क्या सोचते हैं एज ए टीचर, इस चीज़ का टेस्ट हो रहा है यहाँ पर, इसलिए क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो ऑप्शन बी इज़ ए करेक्ट आंसर कि ये वो जो मेंटली चैलेंज चाइल्ड है वो मास्टरी हासिल कर सकता है जैसे कि नॉर्मल चाइल्ड कर सकता है, लेकिन जो मेंटली चैलेंज चाइल्ड है उसको एक अल्टरनेटिव सूटेबल इन्वायरमेंट या अल्टरनेटिव सूटेबल मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज्ड टू। ऑप्शन ए मेजर अचीवमेंट। ऑप्शन बी मेजर प्रोफिशिएंसी। ऑप्शन सी प्रिडिक्ट वंस सक्सेस इन ए प्रोफेशन। ऑप्शन डी मेजर पोटेंशियलिटी। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये क्या मेज़र करता है, सोचो क्या मेज़र करता है भाई। ये मेज़र करता है कि आप उस काम को करने के लिए आपके अंदर पोटेंशियल है, या आप वो काम कर पाएंगे, उस चीज़ में टिक पाएंगे एक लंबे समय तक। तो ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, मेजर पोटेंशियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, awarding grades in place of numerical marks is recommended because grades are easier to award. Option B teaching learning will be facilitated. Option C it will improve quality of education. Option D it will reduce errors in judgment. तो यहाँ पर बताओ ग्रेड्स को हम क्यों प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू मार्क्स, क्योंकि ग्रेड्स जो हैं वो ईज़िली अवॉर्ड किए जा सकते हैं। ईज़िली आप ग्रेड्स के पैमाने में बच्चों को देख सकते हैं। मार्क्स के हिसाब से आप एक आधा पॉइंट ऐसे करके आप ऊपर नीचे करेंगे, ग्रेड्स के हिसाब से सीधा एक दायरा है कि 10 से 20 के बीच में है ये बच्चा 90 से 80 के बीच में लाएगा तो ये ग्रेड हो गया। तो इस तरीके से जो ईजी है, ईजी अवॉर्ड, जो ग्रेड अवॉर्ड करना बिल्कुल ईजी है। लेकिन मार्क्स में मैं बोलेंगे 80 से 90 के बीच में, लेकिन मार्क्स क्या है इसके, 80 से 90 क्या दूँ, लेकिन यहाँ पर एक दायरा है 80 से 90 के बीच में है ये बच्चा, का मतलब इसको इतने ग्रेड देने चाहिए। तो ये आप ग्रेड देना इजी है, इसलिए अवॉर्डिंग ग्रेड इन प्लेस ऑफ न्यूमेरिकल मार्क्स इज रिकमेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम वुड बी मोर इफेक्टिव। कम्युनिकेशन क्लासरूम में कम्युनिकेशन जो है मोर इफेक्टिव होगी अगर, ऑप्शन ए सेंडर यूजेज द सेम कोडिंग सिस्टम एज हिज हर रिसीवर डिकोड्स। अगर सेंडर वही कोडिंग सिस्टम यूज़ करे जो रिसीवर ने डिकोड किया। ऑप्शन बी Sender proceeds slowly but systematically. Option C receiver is willing to receive. Option D being done in congenial environment. तो यहाँ पर क्या सही होगा आपके नज़रिए से, तो बताइए। तो ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट आंसर, बीइंग डन इन कॉन्जेनियल इन्वायरमेंट। अगर वो कॉन्जेनियल इन्वायरमेंट में हो तो इफ़ेक्टिव होगी कम्युनिकेशन क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 201। तो यहाँ पे हमने वादा किया था 210 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने का, तो अप्रोक्सीमेटली 10 मोर क्वेश्चंस रह गए हैं। उसके बाद 210 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। आगे भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक्स और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस लाता रहूँगा आपको। अगर ये सीरीज़, ये चैनल, ये वीडियोस अच्छी लग रही हों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोज ऑफ लेस देन नॉर्मल अटेंडेंस ऑफ पीपल्स इन द क्लास कॉन्टिन्यूसली लाइज इन। ऑप्शन ए the indifferent attitude of school administration towards discipline. Option B the dull learning environment of the class. Option C the indifference of students towards learning. Option D A and B both. तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी A and B both. द कोज ऑफ लेस देन नॉर्मल अटेंडेंस। जो नॉर्मल अटेंडेंस होती है उससे कम अटेंडेंस आ रही है, तो इसका कारण क्या हो सकता है भाई, क्लास में क्या हो सकता है भाई? तो यहाँ पर दोनों ही है, ए बी दोनों ही रीज़न हो सकते हैं। द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड डिसिप्लिन, यानी कि स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो अटेंडेंस के प्रति या बोलें डिसिप्लिन के प्रति जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो इनडिफरेंट है, सही नहीं है, सही होना ज़रूरी है। नेक्स्ट
द डल लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि क्लास के अंदर ही इन्वायरमेंट ऐसा है कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ये भी एक वजह हो सकती है। तो इसलिए दोनों ही वजह हैं, द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड डिसिप्लिन एंड द डल लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास, ये वजह हो सकती हैं कि नॉर्मल से कम अटेंडेंस जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 202, द बिहेवियर ऑफ द टीचर टूवर्ड्स पीपल्स शुड बी, ऑप्शन ए सिंपैथेटिक एंड लविंग, ऑप्शन बी फ्रेंडली, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या होगा सही बताइए। तो करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ दीज, यानी कि टीचर का स्टूडेंट अपने छात्र के प्रति सिंपैथेटिक और लविंग बिहेवियर होना चाहिए, दोस्ती वाला फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, फॉर स्मॉल चिल्ड्रन मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी, स्पेशली फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जो मीडियम ऑफ एजुकेशन वो क्या रखनी चाहिए। ऑप्शन ए नेशनल लैंग्वेज रखनी चाहिए, ऑप्शन बी इंग्लिश रखो, ऑप्शन सी मदर टंग, ऑप्शन डी रीजनल लैंग्वेज। तो भाई क्या हो सकता है सही, चारों में से कोई एक चीज़ सही है कि छोटे बच्चों के लिए वो चीज़ रखनी चाहिए। आपके नज़रिए में बताइए क्या चीज़ रखनी चाहिए। तो भाई करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मदर टंग रखें छोटे बच्चों के लिए, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन थ्रू इंग्लिश मीडियम इज़, इंग्लिश मीडियम के थ्रू भाई प्रोवाइड की जा रही है हायर एजुकेशन। ऑप्शन ए नेसेसरी फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, ऑप्शन बी द डिमांड ऑफ द सिचुएशन क्रिएटेड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए क्या सही है इसमें। तो भाई इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है भाई, जो डिमांड है ग्लोबलाइजेशन की वो हायर एजुकेशन में इंग्लिश मांगती है। तो ऑप्शन बी इज़ ए करेक्ट आंसर, द डिमांड ऑफ द सिचुएशन क्रिएटेड ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी गिवन मोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर effective teaching, ऑप्शन ए गिविंग डिक्टेशन इन द क्लास, ऑप्शन बी क्लैरिफाइंग द सब्जेक्ट मैटर बाय इलिस्ट्रेशन और बाय गिविंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ऑप्शन सी यूजिंग स्टैंडर्ड एंड प्योर लैंग्वेज बिफोर स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो भाई बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ ए करेक्ट आंसर, क्लैरिफाइंग द सब्जेक्ट मैटर बाय इलिस्ट्रेशन और बाय गिविंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी गिवन मोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग के लिए इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी कंडीशन रहेगी। तो वो है क्लैरिफाइंग द सब्जेक्ट मैटर को क्लैरिफाई किया जाए और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की मदद के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट रिगार्डिंग वर्किंग वाइफ अलोंग विद हर हस्बैंड। तो आपकी क्या राय है, क्योंकि आप तो देश का भविष्य हैं तो आपकी राय बहुत डिपेंड करती है भाई। तो ऑप्शन ए, इट इज़ नेसेसरी टू फुलफिल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ सन्स एंड डॉटर्स। भाई इस व्यू पॉइंट पे कि वर्किंग वाइफ है अपने हस्बैंड के साथ, तो इट इज़ नेसेसरी, ऑप्शन है इट इज़ नेसेसरी, ऐसा ज़रूरी होना चाहिए वर्किंग वाइफ हो तो फुलफिल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द सन्स एंड डॉटर्स। ऑप्शन बी है इट इज़ एसेंशियल टू मेक द फैमिली रिच एंड एफ्लुएंट, ऑप्शन सी है इट इज़ नीडेड टू गेन प्रेस्टाइज इन द सोसाइटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सारी चीज़ें हैं भाई इसमें, तो क्या करेक्ट आंसर होगा सोचो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भाई। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि सन और डॉटर्स की एजुकेशनल नीड्स होती हैं जो अगर अगर पढ़ी लिखी ना हो या वर्किंग ना हो तो वो पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए वर्किंग होनी चाहिए, वर्किंग वाइफ शुड बी देयर अलॉन्ग विद हर हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपेंडेंस ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम टीचिंग विल बी ऑन। जो टीचर की डिपेंडेंसी होनी चाहिए वो क्लासरूम में कहाँ पर होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स पर होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए टेक्स्ट बुक्स, ऑप्शन बी हेल्पिंग बुक्स, ऑप्शन सी हिज डिस्क्रिशन एंड वेराइटी ऑफ हिज नॉलेज, ऑप्शन डी ऑल द बुक्स रिलेटेड टू द कंटेंट। तो भाई आपके हिसाब से बताओ क्या होना चाहिए, किस पर डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है भाई, हिज डिस्क्रिशन एंड वेराइटी ऑफ हिज नॉलेज, अपनी नॉलेज की जो वेराइटी है उसके ऊपर डिपेंडेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ इज़ ए बिटर ट्रूथ टुडे। In such a condition as a teacher, what type of social role you will play in your life? Option A है, you will not feel sorry at the degrading human values in this age of fast progress. Option B, you will give weightage to human values in your life as a special person. Option C, you will deliver long speeches in order to divert the direction of social change. Option D, none of the above. तो बताइए क्या है सही आंसर, क्या है। तो सही आंसर होगा भाई ऑप्शन बी, यू विल गिव वेटेज टू ह्यूमन वैल्यूज़ इन योर लाइफ एज ए स्पेशल पर्सन। अगर आप एक
टीचर हैं, टीचर होने के नाते आपको क्या करना है भाई, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। यू विल गिव वेटेज देनी ह्यूमन वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में एज ए स्पेशल पर्सन के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर इज़ नेशन बिल्डर, व्हाट इज़ योर रिएक्शन इन दिस स्टेटमेंट। टीचर एक नेशन बिल्डर है, ठीक है, तो इसके प्रति आप इस स्टेटमेंट के प्रति कैसा रिएक्ट करेंगे। ऑप्शन ए, इट इज़ ओनली ए आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट, ये बस आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट है, इसकी सच्चाई से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कुछ है क्या। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या हो सकता है भाई, ऑप्शन बी बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी हो सकता है कि इट इज़ अ फैक्ट बिकॉज चिल्ड्रन प्ले एक्टिव रोल फॉर नेशन बिल्डिंग आफ्टर लर्निंग समथिंग फ्रॉम द टीचर, ये फैक्ट है भाई। ऑप्शन सी, टीचर इज़ हेल्पलेस बिफोर करप्ट पॉलिटिशियंस। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या आपका रिस्पॉन्स होगा इसके प्रति। तो भाई ऑप्शन बी सही लगता है, ऑप्शन बी सही भी है, ऑप्शन सी बी इज़ ए करेक्ट आंसर। इट इज़ अ फैक्ट, ये फैक्ट है कि चिल्ड्रन को एक्टिव रोल प्ले कराने के लिए नेशन बिल्डिंग में टीचर बहुत भूमिका निभाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस सीरीज़, एंड आगे से हम और भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और भी यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए क्वेश्चंस हैं, हम वही क्वेश्चंस लेते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और अभी तक हमने वही क्वेश्चंस किए हैं। ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को देखिए, कॉपी में लिखिए, बार बार वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जैसा मर्जी आप इसे सेटल डाउन करना चाहते हैं वैसे कीजिए। मेरे हिसाब से तो इन सभी क्वेश्चंस को लिख लें और इन्हें बार बार पढ़ें, जिससे दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस बैठ जाएं और कभी ना भूलें आप इन सबको, क्योंकि क्वेश्चंस को सिर्फ बिठाना नहीं है, इससे एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपके नेचर में ऑटोमेटिकली बदलाव आ जाएगा जब आप ये सारे क्वेश्चंस साथ ही साथ में जो मैं आगे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ वो आप समझेंगे, तो एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका, एक से टीचर बिहेवियर जनरेट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा आपके अंदर। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है भाई। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिहेवियर द स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर टीचर्स। इनमें से कौन सा बिहेवियर स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है अपने टीचर से। ऑप्शन ए, एज ए फ्रेंड एंड वेल विशर। ऑप्शन बी, एज ए फादर। ऑप्शन बी, एज एन एल्डर ब्रदर। ऑप्शन सी, एज एन ऑटोक्रेट बट प्रिंसिपल्ड। तो बताइए, तो जो स्टूडेंट है अपने टीचर से चाहता है कि वो फ्रेंड की तरह रहे, वेल विशर की तरह रहे, ऐसा वो चाहता नहीं, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट करता है, इस नज़रिए से टीचर को देखता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।